बिफोर हिस्ट्री बिगेन ईस्टर्न मोस्ट ऑफ दिस पार्ट से हम लोग जुड़ा हुआ है कल्चरली। Narakasur became the king of Kamrup. मोहिरंग दानव जो असम का जो लेजेंडरी किंग है, डेफिनेटली वो हम लोग का जो यहाँ का जो किरात लोग था, यहाँ का जो नॉन एरियन लोग था, उनका वो रिप्रेजेंटेटिव था। हिस्टोरिकल टाइम्स अलग अलग एसिमिलेशन माइग्रेशन से लेके नया नया नाम हो गया है इन लोगों का। Tibeto-Burman languages spread throughout the South and Southeast Asian countries, from Tibet to Burma, Indonesia, Malaysia, Bhutan, China, and other countries, especially South and Southeast Asian countries. तो ये बेसिकली है मंगोलॉइड रेस, लेकिन लिंग्विस्टिकली तिबेटो-बर्मन ग्रुप में आता है। तिबेटो-बर्मन का बोडो-गारो लैंग्वेज ग्रुप में आता है। Now, in the inscriptions of Assam, we do not find the word Kirata. But when we look at the sculptures, many of the sculptures we find Mongoloid features. In Guwahati city, on Sukresar Ghat, facing the riverside, if you see, you will find the Dhyani Vishnu image, Vishnu in meditation. When you look at it, he has high cheekbones. He's sitting in meditation in Padmasana, and he has epicanthic folds, slight like that. Cheekbones are high, nose is broad. So it's typical Kirata features. Among the Ambari inscriptions, lot of Ambari excavations, lot of sculptures were unearthed. So if you go to the Assam State Museum, you will see quite a lot of sculptures which have Mongoloid features, So many texts may not describe what the kings look like or who look like who, but like in the Nidhanpur Dubi copper plates, we find description of Bhaskar Varman, one of the Varman kings, his elder brother Supratistita Varman. So it is said that his face was round like the moon. Now, it did not say round, it was says like the full moon. It could mean two things. It could mean that it was very bright, or it could also mean that it was circular. So, bit of a Mongoloid feature, And when you look at our diet today, you will find meat is a primary item of consumption. And among the indigenous people of Assam, they have different types of brews. So, the Kiratas are said to be addicted to meat and drink, and we continue this tradition today. Mainly in northern side, Bodo people, northern side and up to Kortoa river, Karatoya, it is written in English, Karatoya river, and Karatoya there is their capital. And Bhaskar Burman was their king. Bhaskar Burman was a Bodo. He was converted into a Hindu. So when Huan Sang came in 664 AD, I think, at that time also he found that the people were all Mongolian people. They were eating, they ate fish, meat, everything. Only Bhaskar Burman, because he was converted, so he said that he was not a meat eater. That's what Huan Sang has written. (350) से पुष्यवर्मन कामरूप प्रागज्योतिषपुर का राजा बने। इतिहासकारों का मानना है कि राजा पुष्यवर्मन नरकासुर के वंशज थे।
निधनपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन और शाही शील इस बात का प्रमाण देते हैं। साथ ही इलाहाबाद पिलार इंस्क्रिप्शन से इस बात के भी साक्ष्य मिलते हैं कि वर्मन डायनास्टी गुप्ता एम्पायर्स के धार्मिक और प्रशासनिक तौर पर इनका अनुसरण करते आए थे। स्टेट फॉर्मेशन का हिसाब से अर्ली कामरूप स्टेट जब हुआ था, वर्मन डायनेस्टी जब इस्ताब्लिश हुआ था, उसका साथ ये जुड़ा हुआ है। क्योंकि हमें पता है कि इलाहाबाद प्रशस्ति, जो इलाहाबाद पिलार इंस्क्रिप्शन समुद्रगुप्तों का, वो गुप्ता एम्परर, उनका जो इंस्क्रिप्शन है वहाँ पे हम फर्स्ट ये हिस्टोरिकल एविडेंस अबाउट कामरूप स्टेट एंड दबाक स्टेट, और वो इंस्क्रिप्शन का हिसाब से कामरूप एंड दबाक स्टेट वाज सबजुगेटेड बाय द गुप्ता एम्पायर। वर्मन डायनास्टी जो 350 से 648 ईस्वी तक चला, उस समय के राज्य के भग्न अवशेष भी असम के भिन्न स्थानों में आज भी पाया गया है। बर्मन डायनेस्टी का टाइम में इतना बहुत ज़्यादा टेम्पल्स यहाँ में नहीं बना। बर्मन डायनेस्टी को हम लोग कंपेयर करते हैं जो गुप्ता डायनेस्टी है, गुप्ता से हम लोग कंटेम्प्रेरी मानता है। तो गुप्ता का जो सिमिलर टेम्पल यहाँ में एक दो ही है मिला है, जैसे कि कामाख्या का जो गेट का स्क्रॉल डिज़ाइन है, फ्लोरल स्क्रॉल डिज़ाइन है, और कुछ कुछ मूर्ति है उसमें जो थोड़ा बहुत जो गुप्ता क्लासिकल आर्ट का मतलब इन्फ्लुएंस है। दो पर्वत का दोरजाम है, जो टेम्पल का दोरजाम है, वो भी गुप्ता से मिलता जुलता है, बहुत बढ़िया गुप्ता आर्ट है। अगर आप मेक्रियाटी साइड में जाएंगे हुजाई में, उसमें भी कुछ टेम्पल्स है, उसमें कुछ फिगर्स है जो गुप्ता आर्ट से मिलता है। फिर आपको दुधनों में एक मूर्ति मिला था, काड़ा मेथी पड़ा बोल के, वह हमें एक बढ़िया सा दुर्गा का इमेज मिला था जो बिल्कुल क्लासिकल गुप्ता इमेज का सिमिलर है। उमानंदो में कुछ मिला है, मतलब कुल मिला के हम लोग को कुछ ही चीज़ मिला है जो गुप्ता के साथ सिमिलरिटी है। मतलब जो बर्मन डायनेस्टी का टाइम पीरियड है, टाइम फ्रेम है, वो फ्रेम के साथ गुप्ता का जो सिमिलरिटीज है उसे बहुत ही लिमिटेड मिला है। गुवाहाटी में अवस्थित उमाचल रॉक इंस्क्रिप्शन। यही है उमाचल रॉक इंस्क्रिप्शंस। वर्मन डायनास्टी का अंतिम राजा राजा भास्कर वर्मन। राजा भास्कर वर्मन आजीवन कुंवारे रहे और कुंवारे ही मृत्यु हो गए, जिनके कारण उनका सिंहासन का उत्तराधिकारी ना होने के वजह से उन्हीं के रिश्तेदार के अवंती वर्मन ने उनका सिंहासन को कब्जा कर लिया। अब उन्हीं के परिवार के समान दावेदारों के साथ टकराव ना हो, इसीलिए अवंती वर्मन ने खुद का नाम को सलस्तंभ रख दिया और वर्तमान तेजपुर के पास हरपेश्वर ने उन्होंने अपना राजधानी को स्थानांतरित कर लिया और वहाँ से
सलस्तंभ डायनास्टी का शुरुआत हुआ, जिसको म्लेच्छ डायनास्टी भी कहा जाता है। बोरगांव कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में सलस्तंभ को विशेष रूप से म्लेच्छ राजा के रूप में उल्लेख किया है। इसीलिए म्लेच्छ डायनास्टी और सलस्तंभ डायनास्टी निसंदेह वर्मन डायनास्टी के निरंतरता को दर्शाते हैं। जो सलस्तंभ लोग आया है तो उसको माना जाता है कि सलस्तंभ लोग भूटान से आया था, उस रूट से आया था, और भूटान से आया था। बोडो लोगों का कुछ ये होगा, उन लोग का कुछ मतलब लीनियस रहेगा उनका साथ। तो उन लोग ने बहुत बड़ा बड़ा मोनुमेंट बनाया असम में, जैसे कि तेजपुर में उन लोग का अपना कैपिटल बसाया था, जहाँ में कोल पार्क है वहीं में उन लोग का एक बहुत बड़ा सा एस्टेब्लिशमेंट था। बामुनी पहाड़ में था। सिंगड़ी में था। ये है सिंगरी रूइंस, जिसको लोग विश्वकर्मा एरिया के नाम से भी बुलाते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ असम के द्वारा संरक्षित किए गए ये स्थान को सलस्तंभ डायनास्टी का ही भग्नावशेष माना जाता है। तो मैं तो बोलना चाहता हूँ कि हम लोग का मदन कामदेव जो है वहाँ भी कुछ मोनुमेंट मुझे लगता है कि सलस्तंभों का है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ असम के मुताबिक कामरूप जिले के बायहट्टाचार्यली के पास अवस्थित ये मदन कामदेव आर्कियोलॉजी साइट में पाए गए भग्न अवशेष भी सलस्तंभ डायनास्टी का ही अवशेष है। यहाँ बिखरे हुए भग्न अवशेषों में से पाला डायनास्टी का भी अवशेष है। म्यूजियम में पाला डायनास्टी का भी बहुत सारी मूर्तियां भी संरक्षित है। कुछ है आपका राजबाड़ी में जो है बड़ा बड़ा जो पत्थर का जो मतलब रूमेंस है, राजबाड़ी है, संख्या देवी है, उसमें भी मुझे लगता है कि सलस्तंभों का इन्फ्लुएंस है। तो इसलिए लगता है कि सलस्तंभों के टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मोनुमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्पल, ज़्यादा से ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट असम में हुआ है। और असम के भिन्न स्थानों पर अवशेष होने की संभावना फोक स्टोरी इंगित देते हैं।
पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ असम या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा अभी तक उद्भावन नहीं किया गया है। हम लोग मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, कॉन्टेक्चुअल एविडेंस हम लोग को नहीं मिल रहा है। एक लार्ज स्केल का एक्सकैवेशन नहीं हो रहा है असम में। उसका एक बात है कि जैसे कि अब देखिए, अब अगर हम लोग का सामने वाला स्टेट बिहार में जाएंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि सदियों से लोग एक ही जगह में सेंचुरी बाई सेंचुरी वो लोग ये किया था, बसोबास किया था। जैसे कि पटना में पाटलिपुत्र तक आप जाएंगे, उसमें आपको 20 फीट 30 फीट तक पूरा सक्सेसिव कल्चरल लेयर मिलेगा। तो असम में सीनरी थोड़ा अलग सा है। यहाँ में लोग एक ही जगह में बहुत दिन तक नहीं बैठते हैं। यहाँ में इतना लैंड था, इतना हम लोग का अवेलेबल वैलीज था, तो लोग कंटिन्यूस हैबिटेशन बहुत कम था। एक ही डिफरेंस है, एक ही मतलब यूनिक साइट है, वो आमबाड़ी है। आमबाड़ी में हम लोग ने एक्सकैवेशन किया, हम लोग का डायरेक्टरेट ने, आर्कियोलॉजी डायरेक्टर ने एक्सकैवेशन करके हम लोग टाइपोलॉजिकली कुछ बीसी का भी एविडेंस मिला है, जैसे कि सुंगा कुसानो पीरियड का ब्रिक साइज का जो है उसको भी मिला है, फिर कुछ टेराकोटा फिगरन भी मिला है। तो मुझे लगता है कि बिफोर खाइस ऑल्सो हम लोग का कल्चर था, लेकिन हम लोग का जो एथनिक ग्रुप उससे पहले का है। हाँ, जैसे कि आज से 1000 BC नहीं होने से 500 BC से तो हम लोग का लुक था यहाँ में, बिल्कुल पक्का था। और हम लोग का जो ड्वेलिंग का जो नेचर था, इट वॉज पेरिसेबल टाइप, बेम्बू से बनाया हुआ घर, टिम्बर से बनाया हुआ घर, तो इसलिए हम लोग इतना एविडेंस नहीं मिलता है। लेकिन अभी हम लोग अलग अलग लाइन से स्टडी चल रहा है, जेनेटिकल स्टडी चल रहा है, कुछ हैबिटेशनल पैटर्न का स्टडी चल रहा है, राइस कल्टिवेशन के ऊपर चल रहा है। तो मुझे लगता है कि हम लोग नियर फ्यूचर में एक ये फैक्ट एस्टेब्लिश करने के लिए हम लोग सकेंगे कि ये कौन था, कौन लोग डेफिनेटली कौन था, उनका कुछ आर्कियोलॉजिकल प्रूफ हम लोग को मिलेगा। म्लेच्छ डायनेस्टी का अंतिम राजा था राजा बालावर्मन, जिन्होंने 860 से 880 तक कामरूप में शासन किए। ये वो समय था जब आर्यवंश के कुछ शक्तिशाली सामंत कामरूप के मैदानों में सिर उठा रहे थे, और अंत में 900 ईस्वी में ब्रह्मपाला ने कामरूप के सिंहासन पर कब्जा किया, और यहीं पर कामरूप में वर्मन डायनेस्टी या फिर म्लेच्छ डायनेस्टी का अंत हुआ, और पाला डायनेस्टी 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक चला। जो कामरूप में जो प्रजाएं थे, म्लेच्छ डायनेस्टी का जो प्रजाएं थे, कई प्रजाओं को आर्यन मूल के पाला राजा के अधीन रहना मंजूर नहीं था। इसीलिए भिन्न समय में भिन्न दिशाओं में जाकर अपना अपना छोटे छोटे राज्य बनाकर शासन करने लगे। एक्चुअली जो बोडो ग्रुप का एक फ्रिक्शन जैसे ब्रह्मपुत्र को क्रॉस करके वहाँ चला गया ना, जब आहूम ने एंट्री किया, जब आहूम ने सोमरपीठ ने जब आहूम एंट्री किया 13th सेंचुरी में ना, 1226 में वो लोग एंट्री किया, करने के बाद 15th सेंचुरी में वो लोग, उस समय जो कसारी लोग था, सोकल जो कसारी लोग था, वो लोग दिसांग एंड धनसिरी का बीच में, दिखो एंड धनसिरी का बीच का जो दुआब था, उसमें उन लोग का कैपिटल, उन लोग का मतलब कंसंट्रेशन था। प्राचीन कचारी जनजाति ने लगभग 10वीं सदी इंग्रजी में धनसिरी नदी के किनारे इस दुर्ग का निर्माण करके अपना राजधानी बनाई। दीमापुर जो कछारी प्रजाति, दीमापुर उस समय नॉर्थ असम के कछारी साम्राज्य का केंद्र हुआ करता था। इस ब्रह्मपुत्र घाटी में चीन के यूनान निवासी सुकाफा, उनके नेतृत्व में 17 तायाहुम लोग खामजांग गांव होकर कामरूप में प्रवेश करके बसना शुरू किया। फिर तायाहुम लोगों ने कछारी लड़की और औरतों से शादी करके अपना संख्या बढ़ाकर 1536 में सुकाफा के वंशज सुंगहुंगमुंग ने कछारी राजा खुंखड़ा के राज्य दीमापुर पर आक्रमण कर कब्जा कर लिया।
और दीमापुर और गोलाघाट राजबाड़ी को तहस नहस कर दिया। इस तरह 1536 में गोलाघाट राजबाड़ी के साथ साथ दीमापुर का कचहरी राज शासन का अंत हुआ और आहूम ने अपना बृहत असम बनाने का परिकल्पना को साकार करना शुरू किया। The word Assam came into being after, I think, 13th or 14th century. It came from the word Ahom, the Assam Ahom people, when they entered in this place in 1228 AD. They came, but they didn't come directly up to here. They came up to near Tirap only, near Sodia. So it took many years for them to arrive this side. So I think only in 16th century, I think, or 15th century, they came here. I mean, they came to Guwahati. So before that, what was the name of the place? This is the defect of our people. This is the demerit of our inefficiency to society, our inability to find out the name of our land in those days. फिर 1706 में माइबोंग पर कचहरी राजा ताम्रध्वज का शासन था। आहूम राजा रुद्र सिंह ने माइबोंग को भी कब्जा कर लिया। मेरे हिसाब से आप अगर एडवर्ड गेट का अगर हिस्ट्री ऑफ असम पढ़ेंगे तो वहाँ में एक बात लिखा है कि ये कचहरी लोग जहाँ भी रहा करते थे वो उनका राजा को टैक्स दिया करते थे। वो तो कब आप कहीं में भी नहीं मिलेगा ऐसा कि आप एक राज्य का आप बाशिंदा है और दूसरा राज्य में टैक्स दूसरे राजा को टैक्स दे रहा है। वो मैंने नहीं बोला, गेट में लिखा है। तो वो इसीलिए हुआ है कि जो पहले मैंने बोला था अपनापन एक है, जो क्लोज एथनिक टाइज है, इसीलिए कहीं भी रहने से भी अपना राजा को राजा मानते थे और राजा मान के ही देते थे। तो उसके हिसाब से मेरे हिसाब से ये पूरा कसारी समुदाय का भी बोल सकता है। अभी बोलने में तो हम लोग वही बोलते हैं कि बोरो कसारी, दिमासा कसारी, सोनवाल कसारी ऐसे ही बोलते हैं। तो उसी समय में आहूम आने से पहले हम लोग का जितना जनजाति था, जितना ग्रुप था, जितना डायनेस्टी हुआ था, किसी का बुरंजी लिखने का, हिस्ट्री लिखने का परंपरा नहीं था। तो आहूम लोग ने आके हिस्ट्री लिखना शुरू किया। तो हम लोग अभी आज कसारी को जानते हैं, हम आज सुटिया को जानते हैं, मतक मुरान को जानते हैं थ्रू आहूम बुरंजीस। तो आहूम लोग ने बुरंजी मेटिकुलसली लिखते हैं, किसका साथ कैसा कॉन्टेक्ट हुआ हो सकता है थोड़ा बहुत बायसनेस है, लेकिन वो एक डॉक्यूमेंट्स है हिस्ट्री का कि उन लोग आके परंपरा शुरू किया। तो उनका मुताबिक जो जिन लोग को उनको मिला था वो लोग कसारी लोग था आहूम बुरंजी के मुताबिक। तो उनको जो उन लोग का बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, हाँ, तो धनसिरी वैली से कसाई लोग को छोड़ के दीमापुर जाना पड़ा। फिर दीमापुर से भी उन लोग का कॉन्फ्लिक्ट हुआ आहूम के साथ। फिर खास मतलब माइबोंग गया, माइबोंग से लास्ट में जाके वो लोग खासपुर में बैठा है।
1830 में मणिपुरी के हाथों कछारी राजा गोविंद चंद्र की हत्या हुई। राजा निसंतान होने के कारण गोविंद चंद्र की हत्या के साथ साथ कछार में कछारी का राज शासन खत्म हुआ। इस तरह देखते देखते ही बृहद कछारी साम्राज्य खत्म हो गया। तो डेफिनेटली वो तो बोरो ग्रुप का एक फ्रिक्शन है डिमासा लोग, नो डाउट। लेकिन जो बोरो कछारी जो अब नॉर्थ बैंक का जो जैसे कि कुकराझाड़ का जो बोरो लोग का है, उनका सर उन लोग का लिंग्विस्टिकली तो मिल है, अगर जेनेटिकल स्टडी का अगर फिर भी मिल है, लेकिन एक ग्रुप चला गया वहाँ में। वो लोग जाके थोड़ा सा अपना इसको बेचा है, जो मटेरियल कल्चर को थोड़ा डेवलप किया, जैसे कि अपना कैपिटल बनाया। हाँ, लेकिन बाकी जो बोरो लोग यहाँ में रह गया था, उन लोग का भी अपना अपना सिविलाइजेशन है। जब सालस्तंभ डायनेस्टी खत्म हो गए तब पाला डायनेस्टी की शुरुआत हुई। जब पाला डायनेस्टी भी खत्म हो गए तब ये पश्चिमी भाग में हाउरिया मैच जो कर्म से मंडल थे, उनके पुत्र विशु ने 1515 में कोच डायनेस्टी की शुरुआत की। विशु, जिनको बाद में विश्व सिंह नाम से जाना गया, जिनके बारे में आप चैप्टर 2 में देख चुके हैं। मुझे सुनाई दे रहा है उन लोग का एक कुछ रिमेज मानस, जो मानस अभयारण्य है ना, उसमें कुछ है, उन लोग का राजाओं का कुछ है। वो भी हम लोग, वो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो नेशनल पार्क है, हम लोग जा नहीं सक रहा है, लेकिन हम लोग मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग नियर फ्यूचर में उसमें स्टडी करेंगे। डेफिनेटली बोरो लोगों का जो डेफिनेटली कुछ हम लोग को मिलेगा, उनका कैपिटल का, उनका एस्टेब्लिशमेंट का, उनका सेटलमेंट का कुछ डेफिनेटली मिलेगा। इन सब के अलावा असम में बहुत से आर्कियोलॉजिकल साइट हैं जो 4th सेंचुरी से लेकर 9th सेंचुरी तक के समय काल के हैं, जो कि वर्मन डायनेस्टी का समय का था, लेकिन इन पर गहन रिसर्च होना अभी भी बाकी है। इसके अलावा असम के भिन्न स्थानों पर ईसा पूर्व के कई सारे भग्नावशेष पाया गया है, पर इन सब का सटीक प्रमाण नहीं हो पाने के कारण इतिहास में जोर नहीं पाया है। लेकिन असम के कई सारे जनजाति में जनश्रुति के आधार पर फोक स्टोरी अभी भी है। जैसे वर्तमान गुवाहाटी शहर के धरती के तल में मैरंग दानव और नरकासुर का नगर दबे हुए हैं। वर्तमान गुवाहाटी के प्रेस क्लब से लेकर डिस्ट्रिक्ट म्यूजियम के नीचे नरकासुर के अस्त्र के गोदाउन हैं। इस तरह सैकड़ों कहानियां प्रचलित है। क्या सच क्या झूठ कह नहीं सकते। हाँ, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उसी के बीच आम्बरी आर्कियोलॉजिकल साइट में 200 BC से लेकर 1200 AD तक के भिन्न समय की सिविलाइजेशंस के अवशेष और राज्य होने का प्राचीन भग्नावशेष पाया गया। और भी खुदाई करेंगे तो और भी मिलते, लेकिन पानी के लेवल इतना ज़्यादा है कि खुदाई करना संभव नहीं हो पा रहे हैं। ये आर्कियोलॉजी का कहना है। खैर, फोक स्टोरी से ही तो शुरू होती है इतिहास की कहानियाँ। मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि हमारे जो इतिहास है वो इतिहास पूरा नहीं है। इट्स इट्स नॉट कंप्लीट, इट्स वेरी स्कैटर्ड। तो मैं चाहूँगा कि युवा पीढ़ी इसमें कुछ इंटरेस्ट दे के इसको जो पुराना इतिहास है उसको ला के जोड़ने के लिए कोशिश करें। आमार मेजरिटी নহবৰ কাৰণে তেওঁলোকে যিমান পাৰে আমাক माइनॉरिटी করে আমার সমষ্টি गठन कि ये ग्रो मोर फूड नहीं कर रहे हैं, ग्रो मोर मुस्लिम कर रहे हैं असम में। The tribal belt and block is a weaker measure than the line system and very much weaker measure than the Sikh schedule itself. भाषा प्रयोग का जो दिमाग पहले
1911 से शुरू हुआ ये हाबराघाट बड़ो सम्मेलन से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी তেওঁলোকৰ সময়তে নাঙল যাৰ মাটিটা সেই আন্দোলনটো 77निफ्राय जों 1985 सिम जों अनारेरि मावनाय बायदि मावदों आरो जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि